हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 25। इसमें जो है हम करेंगे ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार के विषय में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे कोई भी बोर्ड के बच्चे हो। अगर उनके सिलेबस में ह्यूमन राइट्स है, इसका मतलब ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैप्टर इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा, प्लस समझाने का तरीका भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर डूइंग हेयर अ ह्यूमन राइट। There is a most important topic arrive a human right in the Indian Constitution. There is a most important human right in the Indian Constitution. The Constitution of India duly recognize the importance of a human right and guarantees or contain a fundamental right in a part 3, which include the right of equality, right to freedom, and right against explanations, right to freedom of religions, culture, and educational right, and the right is a constitutional remandance. Article 32 give the right to be constitutional remanded in their form of original judication of a Supreme Court of India from the enforcement of this fundamental right, and this is the protection of the individual against invasions of their human right. Part is a here of 4 of the Indian Constitution contain directly principle of state policy, which are the principle of fundamental in a governance to be absorbed by the state in a formulations of the policy. This includes the duty of the state to the ensure of a social order for a promotion of the welfare of the people, social justice, right to work, to be education and social security, and provision for a just and humans of condition of work and promotion of interest of the weaker section. Duty to rise to the level of nutrition and the standard of living, and to be improved the public health, protection and improvement of the environment and ecological and wildlife, etc. In addition, there are fundamental duties of every citizen covering a wide range to the strength to the guarantee of fundamental right are the Article 51A. The part is the 4A of the Constitution. In addition to the Article 32 empowering the Supreme Court to enforce the fundamental right, the High Court is empowered by the Article 226 for the same purpose to exercise its powers. The primary duty of the higher judiciary to be protect and enforce the human right is their constitutional mandate. The rules of law is the basis feature of our constitutions as a judicially review. The judicial review is the most important. The role of Supreme Court of India is compatible, expanded to human right, and it has found Article 21 of the Constitutional, and the most is a fruitful is the article. In the several case of the Indian Supreme Court has said that the compensations in to be given for the violation of right under the article, such as the right to human dignity, right to healthy environment, and right to social security, and right to the protection of childhood, etc.
The impact of the 1948 is a universal declaration of human right on the drafting part 3rd and the 4th of the Indian Constitution. Is a failed thought, and the Indian has accessed to be universal declaration of human right as well as to be both the convent and with the content of reservation. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारतीय संविधान में मानवाधिकार का क्या महत्व है। देखिए, भारत में मानवाधिकार के रूप में ही देखा जा सकता है, क्योंकि भारत जो है एक डेमोक्रेसी कंट्री है, यानी यहाँ पर जनता का राज है और सभी जनता के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसलिए मानवाधिकार का होना भारतीय संविधान में बहुत ही जरूरी है। भारतीय संविधान में मानवाधिकार के महत्व को पहचानना है तथा तृतीय अध्याय में कुछ मौलिक अधिकारों को गारंटी भी दी गई है। ये समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं सहज अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के संबंध में दत्त है, जिसके अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है, यानी सारे के सारे सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही कार्य करता है। यह किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों के हनन के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार देता है, यानी किसी भी व्यक्ति का अधिकार का हनन हो रहा है तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इनमें राज्य द्वारा लोगों के कल्याण में वृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य सम्मिलित है तथा काम करने की न्याय, उचित एवं मानवीय स्थिति का जो है प्रबंधन, कमजोर वर्गों के हितों की प्रोत्साहन करना, पोषण एवं जीवन सतर को उठाना तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करना, पर्यावरण परिस्थिति तथा वन्य जीवन इत्यादि की रक्षा एवं सुधार करने में के कर्तव्य सम्मिलित होता है इसमें। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में दर्ज किया गया है, जो मौलिक अधिकारों की गारंटी और अधिक मजबूत करते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करने वाले अनुच्छेद 32 के साथ उच्च न्यायालय के ऐसी ही शक्तियां अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदान की गई है। कहते हैं उच्चतम न्यायपालिका द्वारा मानवाधिकार का संरक्षण एवं उन्हें लागू करने का काम एक संवैधानिक आदेश है। कानून का शासन हमारे संविधान की आधारभूत विशेषताओं है और उसी प्रकार न्यायिक समीक्षा भी आधारभूत विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। मानवाधिकारों के प्रसार में उच्चतम न्यायालय की भूमिका जो है प्रशंसनीय है, क्योंकि जो है उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य मानवाधिकार के अंतर्गत किया है तथा अनुच्छेद 21 इसके लिए एक जो है फलदायी अनुच्छेद माना गया, यानी कि जो अनुच्छेद बनाई गई बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिए गए अधिकारों जैसे मानवीय गरिमा का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बचपन की रक्षा का अधिकार इत्यादि के उल्लेख जो है क्षतिपूर्ति मुआवजा देना होगा। यानी इन सब चीज़ों के उल्लंघन करने पर जो है क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। कहते हैं 1948 में मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का प्रभाव भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 के रूप में निरंतर अनुभव किया गया। भारत ने जो है मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र तथा अन्य दोनों जो प्रतिवादों के कुछ फेरबदल के साथ स्वीकार भी किया। The next topic is the most important here are National Human Right of Commission. There is the most important topic arrive here on National Human Right and Commission. The Protection of Human Rights Act 1993 was enacted to India to prove for their constitution of a National Human Rights Commission. State human rights commissions in a state for the better protection of human rights and for a matter connected to threat with of the incident of threat to. Human rights are defined in a section 21D of the Act to be a mean right relating to the life, liberties, equality and dignity of the individually guaranteed by their constitution are embodied in a international covenant and enforceable by the court in India. The function of the commission are enumerated in the section 12, which is include while area level to the commission not only to be inquire into the violation of the neglections in their prevention of violation of human rights, but also to promote the human right culture and to perform any function necessary for the promotion of human right. Ever signed to the Constitution 1993, the National Human Rights Commission has been to the discharging
a role of complementaries to that of Supreme Court of India by performing those tasks is which by their is a very nature their NHRC can be performed better. Example is a monitoring any of situation and functioning of an institution. The dependence of between this is a institution has been considerable improve the mechanism for the protection of human right in the country which are primary to state a responsibility. The interpretations of the fundamental right are particularly Article 14, right to equality, and the Article 21, right to the life, by the Supreme Court has a considerable inquiries to the meaning and scope of human right in India. The National is a Human Right of Commission has also interpreted the function of enumerated in their section 12 of the Act, especially to be include in the monitoring of the functioning of their institution of governance with a view to be ensure better protection of human right and to prevent there is a violation. The NHRC is a visualize its role as that of the catalyst to improve the equality of governance with the forms of belief that a good governance in the contents with the constitution and the right to be law along can be effective for the better protection of human right. The linkage between the two and direct are clear. There is the most important the nature and extent of the state's responsibility for the protection of human rights was indicated by the NHRC in a order made in their case of recent Gujarat communal disturbances. The commission observed it is a primary and inseparable of the responsibility of the state to protect the right of life, liberty, equality, and dignity of all their those who constitute it. It is also the responsibility of the state to ensure that such a right are not to be violated either through the overt is act or strength, abandonment and negligence. It is a clear and emerging of principle of human right and jurisprudence that the state is responsible not only for the act of its own agent but also for the act of the non-state player acting within the jurisdiction. The state is addition of responsible for any inactions that may be cases are the facilitated their violation of human right. There is the most important. There is the next. The National Commission in a Human Right has investigate a several case of gross violation of human right by the official agency and also terrorist groups. The commission where there is inquiry into the complaints of violation of the human right may be called for information and report from to central government or any state government or any other authority to organizations and subordinate theirs to within such a time as may be specific by its when after the inquiry their commission come to the conclusion that the violation of human right has a credit it may be take a flowing step here. So what is the step here? The first step is where to the inquiry disclose that is a violation of human right or unless in the privations and human right by the public servant it may be recommended for individually proceeding for the precautions by the concerned government and authorities. And second here, approach the Supreme Court of the High Court is concerned from a direction. And third is recommended for their concerned government or authority for their grant of immediate and intermediate relief for the victim or members of his family. And whenever is the complaint of the violation of human right be made against a member of the army force, the commission is required flow of different procedure. It may seek and report from the central government and many make its recommendation. The commissions took up notice of report dated 22 March 2000 and which appeared in all the leading newspaper is concerning their killing of 35 members of Sikh community in a village of Anantgarh district during the night of 21 March 2000 by the army militants. It was stated that all those is a kill were a man aged between 16 to 55. Later as a woman died of shock on the scene there is a body of those killed. At least two families lost all there is a male members. The incident occurred a few years before the President of United States of America was began of officially tour of India.
The commission issued a note to Chief Secretary and Directly General of Police, Government of Jammu and Kashmir, as well as to the Secretary, the Ministry of Home Affairs, and Government of India is calling for a detailed reports. On 15 April 1996, 6 is an executives were killed by the police at the Matagal village, Daltoganj, and Bihar. The People Union of Civil Liberties at the Palamun, which they had to earlier inquiry into the matter, started that an army group come to the village to settle to the ditch. On the receipt of their information, the police come and encircle their member of the army group who is surrounded to the police. Thereafter, there is a member of the group where is made to stand at the different place and fire at by the police. In all, the 6 persons were killed as a result of their firing by the police. The PUCL is found that is allegations of the police that is a Naxalite and group had attacked by the police party with their bombs and the firearms, and that is the police returned it for a self-defense, resulting in the death of the 6 person to be untrue. Their army groups is a come to the plan clothes, and but after there is a post-mortem where they are dressed in the khaki uniform which has neither any horse nor a bullet mark on them. The dead body were thrown away as but when there was the protest by the people, 6 body were is a transport in the police van and the cremated by the police. As the police attached to be a same police station were involved in the firings resulting in the killing. The commission recommended that case should be made an independent investigation agency, namely is a CID, and to be complete the investigation within the 4 months. If the investigation called to the launching of precaution step of speedily tried to be taken, the commission expressed the hope that is a compensation would be awarded by the state if the case ended in the conventions. There is a most important. The commission took is a notice of matter is a report in the newspaper Indian Express dated 26 January 1989 occupying to the Bihar all script new victims and upper caste is a Ranveer Sena kill of 21 Dalit is a Jahanabad. According to the report, the Ranveer Sena is a private army of the upper caste landlord in Bihar. Army with the sophisticated is the weapons has a kill at least 21 people including 6 children and 5 women. And 25 January 1989, Ruksa Sagar is a Bihar village under to the Mehandai police station in the Jahanabad district of Bihar. The victims were all the form of backward caste and included Sarwar Dalit. The commission will be taking cognizance of the matter on 26 January 1999, expressed to the shock at the news of the killing of 21 Dalit in the Jahanabad and effectively is investigate and willing to took the guilty persons and ensure that there was no occurrence of such an incident. It is a further directly the state is a government to be grant relief and escort to be a member of the families of the declared and their injured of victim. National Human Rights Commission neither does be demanded of decision for way of court of law and does no nor can be recommendation be enforced like a judgment of the court. The recommendation of the commission received will the publicity and has been terms of impact operative and socially. The role of play of the commission in the complaints against to TADA with a worth mentioning. It has a temporary regulations which expressed on 23 May 1985 when the TADA plus it to the substitute or regulation by the government was not clear by parliament. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था जिसमें मानवाधिकार तथा उसमें जुड़े मामलों का बेहतर रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग गठन का प्रावधान भी किया गया था। मानवाधिकारों के अधिनियम की धारा 2(1)(d) के अंतर्गत परिभाषित भी किया गया था, जिसका अर्थ है कि जीवन स्वतंत्रता व्यक्तियों की गरिमा में जुड़े सभी अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आएगा जिनकी सुरक्षा की गारंटी संविधान देता है। अर्थात
ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रसिद्धियों से दर्ज है और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य भी है। आयोग के कार्य की गणना अनुच्छेद 12 में की गई थी, जिसमें आयोग को एक व्यापक क्षेत्र में बताया गया था, जिसमें न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन अथवा लापरवाही के मामलों की पूछताछ और जांच करना ही सम्मिलित है। अतुल मानवाधिकार संस्कृति की बढ़ावा देना तथा मानवाधिकारों को प्रोत्साहन के लिए आवश्यक कार्य करने का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया गया था। 1993 में अपने गठन के साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सर्वोच्च न्यायालय के पूरक संस्था के रूप में अपना कार्य करता रहा तथा किसी स्थिति अथवा किसी संस्थान के क्रियाकलापों पर नजर रखने का काम अपने जो स्वभावगत ढंग से बेहतर तरीके से कर रहा है। इन संस्थानों की परंपरा निर्भरता ने देश में मानवाधिकारों के संरक्षण की प्रक्रिया में काफ़ी सुधार भी किया है, जो कि प्राथमिक रूप से राज्य का दायित्व भी माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार तथा 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार की व्याख्या ने भारत में मानवाधिकारों को और क्षेत्र का विस्तार भी मिला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अनुच्छेद 12 में दर्ज अपने कार्य, विशेष रूप से शासन चलाने वाले संस्थाओं की कार्य प्रणाली की जांच करने से संबंधी अपनी शक्ति की मानवाधिकार की सुरक्षा एवं उनके उल्लंघन को रोकने के सुनिश्चित करने के लिए व्याख्या भी की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शासन की गुणवत्ता को सुधारने हेतु अपनी भूमिका को इस दृढ़ विश्वास के साथ उत्प्रेरक के रूप में देखता भी है। संविधान के अनुसार अनुशासन तथा केवल कानून का शासन ही मानवाधिकार के संरक्षण के लिए प्रभावशाली साधन हो सकता है। दोनों के बीच संबंध सीधा और स्पष्ट देखा जा सकता है। कहते हैं मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य के दायित्व को प्राकृतिक एवं क्षेत्र के विषय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में जो हुए गुजरात की सांप्रदायिक गड़बड़ी के मामले में संकेत भी किया है। आयोग की टिप्पणी की थी कि कुछ यहाँ पर टिप्पणी दी गई है। यह राज्य का प्राथमिक और अनिवार्य दायित्व है कि वह अपने सभी नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकारों की रक्षा करे। राज्य की यह भी जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसे अधिकारों का उल्लंघन जानबूझकर या अथवा लापरवाही से न हो पाए। मानवाधिकारों का जो है न्याय उचित का यह स्पष्ट और उभरता हुआ सिद्धांत है कि राज्य न केवल अपने लिए काम करने वाले लोगों के कृतज्ञ के प्रति उत्तरदायी है, अतुल राज्य उन सब लोगों के कृतज्ञ के लिए भी उत्तरदायी है जो उसके अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। राज्य उस निष्कर्षता के लिए भी उत्तरदायी है जो मानवाधिकारों को उल्लंघन को सुविधाजनक बनाता है, जो कि बहुत विशिष्ट बात रहती है। कहते हैं राष्ट्रीय मानव आयोग ने सरकारी तंत्र तथा आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के अनेक मामलों की जांच भी किया है। मानवाधिकार आयोग किसी मामलों की शिकायत की जांच के दौरान केंद्र सरकार से अथवा किसी भी राज्य सरकार से जो है सूचनाएं अथवा रिपोर्ट अथवा किसी अधिकारी प्राधिकरण सहायक से एक निश्चित समय में मांग कर सकता है। जांच के बाद यदि आयोग इस नतीजे पर पहुंचता है कि अधिकारों का हनन हुआ है तो वह निम्नलिखित कदम उठा सकता है। तो वो कदम जो है महत्वपूर्ण रहेगा। यदि जांच से पता चलता है कि किसी लोक सेवा द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है तो अनदेखी की गई है, तो उसके विरुद्ध राज्य सरकारी कार्रवाई करने अथवा अभियोजन की जो अनुशासन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय से दिशा निर्देश हेतु संपर्क भी कर सकता है। पीड़ित सदस्य या उसके परिवार के अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए सरकार तथा प्राधिकरण से सिफारिश भी कर सकता है। यदि मानवाधिकार के पास सशक्त बल के किसी सदस्य द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला आता है तो उसके रिपोर्ट का तरीका कुछ अलग होता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है और उस पर वह अपनी सब्सिडी प्रदान कर सकता है। आयोग ने 22 मार्च 2000 की घटना की ध्यान में लिया, जिसमें अनंतनाग जिले के एक गांव में सिख समुदाय के 35 सदस्यों को जो है सख्त उग्रवादियों द्वारा मार गिराया गया था और इस समाचार को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किया गया था। मारे गए सभी लोगों की आयु 16 से 55 वर्ष के मध्य थी। यह घटना 21 मार्च 2000 की रात्रि में घटी थी। बाद में सभी शवों को देखकर एक महिला की भी मृत्यु हो गई। इस घटना में कम से कम 2 परिवार के सभी पुरुष सदस्य मारे गए थे। यह घटना उस समय हुई जब मात्र कुछ ही घंटे बाद संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर पहुंचने वाले थे। आयोग ने इस संज्ञान में लिया और उसने मुख्य सचिव और जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशकों को नोटिस भी भेजा तथा एवं साथ ही सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी विस्तृत रिपोर्ट देने की बात कही गई थी। दूसरी घटना जो थी 15 अप्रैल 1996 की थी। इसमें पुलिस कर्मियों द्वारा 6 नक्सलवादियों की
जो है डाटागंज बिहार के मुर्गाडाम में हत्या कर दी गई थी। द पीपल और यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी यानी उसके जो है प्लम्स जाकर इस मामले की छानबीन की और पाया कि एक विवाद के निपटने के लिए एक सशक्त दल गांव में आया था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और इसे चारों ओर से घेर लिया। बंदूकधारियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में खड़ा करके गोली मार दी। पीयूष यल के यह भी पता चला कि पुलिस को यह आरोप था कि यह नक्सलवादियों के बम और अग्नि शस्त्र के पुलिस पर हमला भी किया। इस पर जवाबी गोलीबारी में वह 6 नक्सलवादी मारे गए, जो कि एक झूठी कहानी थी। ये नक्सलवादी सर्दी वर्दी में आए थे, यानी शादी वर्दी में थे, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उन्हें खाकी वस्त्र पहना दिए गए थे, जिसमें न कोई छेद थे और न ही कोई गोलियां के निशान थे। उनके शव फेंक दिए गए थे, किंतु लोगों के विरोध के कारण पुलिस गाड़ियों में उनका शव ले जाकर उनका दाह संस्कार किया गया। पुलिस के साथ साथ संबंधित थाने के पुलिस भी इस कार्रवाई में शामिल थे। आयोग ने मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए केस सीआईडी के सौंपने की प्रस्तुति की। इसके लिए 4 माह का समय दिया गया। आयोग ने भी विश्वास व्यक्त किया कि दोष सिद्धांत होने पर राज्य द्वारा राहत प्रदान की जाएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट घटना यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। फिर आयोग ने 26 जनवरी 1999 के इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस घटना को संज्ञापन लिया था, जिसका शीर्षक था बिहार पुरानी कहानी नए अपराधी और उच्च जाति के रणवीर सेना ने जो है जहानाबाद में 21 दलितों को मौत के घाट उतार दिया। खबर के अनुसार अंगड़ी जातियों के रणवीर सेना को जो अत्यधिक आधुनिक शस्त्रों से लैस थी ने 21 लोगों को मार गिराया, जिनमें से 5 महिलाएं और 6 बच्चे थे। यह घटना 25 जनवरी 1999 की है। यह घटना जहानाबाद जिले से मेहदीन थाने के अंतर्गत रुख सागर विद्या गांव की है। पीड़ितों में से 7 दलित थे एवं 6 से पिछड़ी जातियों के थे। अखबार में छपी खबर का संज्ञापन लेते हुए आयोग ने अपराधियों के धर पकड़ करने को कहा, ताकि वह ऐसी घटना को पुनरावृत्ति न हो सके। आयोग ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि पीड़ितों की सहायता करे तथा घायल तथा जो है मुक्तभोगी परिवारों को सुरक्षा प्रदान करे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी सामान्य न्यायालय की तरह न तो कोई फैसला सुनाती है और न ही न्यायालय के फैसले की भांति इसकी जो है संस्तुति मानने के बाध्य होना पड़ता है। आयोग की संतुष्टि जानना खूब प्रचलित होती है और सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ती भी है। आयोग का डाटा का विरोध छोड़ा गया है अभियान एक उल्लेखनीय कदम है। यह एक अस्थायी कानून है जो 23 मई 1995 को समाप्त हो गया था। डाटा के समाप्त होने पर सरकार द्वारा किसी वैकल्पिक कानून को सदन में पारित नहीं किया गया। The next is the most important topic arrive here, role of non-governmental organization mean NGO. There is the most important for the human rights. Accordingly, their impact on human rights has brought about is a profound change in the notions of state as organities. Today, no nations can be said that way. It is treated the citizens is purely as a domestic concern. And the globalization of human rights with their modern concept of global village has resulting in the human right situation anywhere in the world become a matter of international concern. The voluntary organization, which are also called non-governmental organization, all over the world has begun to support and promote the human right in all society. And the action of international non-governmental organizations like their Amnesty of International and the Human Rights Watch, the organization like the People as a Union and Civil Liberties, with regard to massive human rights elaboration in the Burma and the Yugoslavia and the Kosovo, Bosnia and the Rwanda is the East Timor and Syria, Illinois and Sudan and Gujarat in India, and the number of other places of the confessed are the as well example of this concerned. The activities such as organization are coordinated at the international level through the human rights. A commission established by the General Assembly of the United Nations in 1946. As a result of these activities of the non-governmental organization, it has known become a familiar requirement for a state and submitted report to be a statutory organs, human rights community, and children communities. Human community is a concept of the elimination of their racial discrimination, etc. About their international implementation of human rights is a obligation.
Half a century back, it would be has to appear it's unthinkable that a surveillance the state would be periodically is submitted a report to an international body about their internal matters involving a treatment of their citizens by their government, and then the state participation in a discussion of the report with the number of an international body drawn from all over the world. Such is the power of the idea of human rights today. The impact of non-governmental organization with regard to the protection and promotion of human rights is no longer debatable. The impact is clear and visible. Among which there is a Genius Human Rights is an agency officially are non-governmental and human right. The movement in India is a quite strong. One greater some buildings a block in preventing of violation of human rights. It is a poverty. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है गैर सरकारी संस्था की भूमिका, अकॉर्डिंग टू जो मानव अधिकार है उसके रिगार्डिंग ये आया है कि गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका क्या हो सकती है, यानी एनजीओ का क्या रोल होता है हमारा मानव अधिकार के अंतर्गत। कहते हैं मानव अधिकार का प्रभाव किसी भी राष्ट्र के संप्रभुता की अवधारणाओं में से एक बदलाव लाया है। कहते हैं वर्तमान में कोई भी देश अपने नागरिकों को घरेलू सरकारों से परेशान नहीं कर सकता है। नवीन अवधारणाओं से मुक्त मानवाधिकार को भूमंडलीकरण ने विश्व को एक जो है भूमंडलीय गांव बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप मानवाधिकार के मामले अब वैश्विक सरोकार से जुड़ गए हैं। सर्वोच्च संस्थाएं जिन्हें गैर सरकारी संस्था भी कहा जाता है को विश्वव्यापी समर्थन प्राप्त है और यह पूरे विश्व के प्रत्येक समाज में मानवाधिकार को समर्थन एवं प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये जो कि बहुत बड़ी बात है। कहते हैं विश्व में हर जगह जो है एनजीओ जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान और विशेष अपना सराहना कार्य भी कर रही है। अगर हम देखा जाए यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच एंड प्लूएजस यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जैसे गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्य जैसे पूर्व युगोस्लाविया, कोसंबो और वेलेंसिया आदि, रवांडा, पूर्वी तिमोर और सिरोनिया, सूडान और भारत में गुजरात एवं ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ उपरोक्त संस्थाओं ने उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। इन संस्थाओं के क्रियाकलाप के बीच 1946 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्थापित मानवाधिकार आयोग तालमेल करता है। गैर सरकारी संस्थाओं के उपयुक्त क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप अब राज्यों के लिए सर्वैधानिक संस्थाएं जैसे मानवाधिकार समिति, बाल समिति, महिला समिति और जाति समिति, भेदभाव हटाने की समिति आदि सम्मिलित हो चुकी है के सामने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना और आवश्यकता हो गया है। यानी इन चीज़ों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना जो है एनजीओ का एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। देखा जाए तो लगभग आधी शताब्दी पूर्व यह अनुभव करना सोच से परे था। यानी आधी शताब्दी पूर्व हम इस बात के सोचे तो ये संभव ही नहीं था कि यहाँ पर प्रभु संपन्नता राष्ट्रीय अपनी आंतरिक रिपोर्ट को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने रखकर यह बताए कि उसने अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य उसके व्यवहार पर चर्चा करें। किंतु आज मानवाधिकारों की अवधारणाओं की शक्ति का यह रूप हमारे समक्ष उपस्थित है। मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका कहते अनिवार्य है। इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता भी है और मानवाधिकारों के मूल्य एजेंसियों के साथ जो है सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं को जोड़ने से भारत में मानवाधिकार आंदोलन काफ़ी सक्रिय हुआ है और मानवाधिकारों के संरक्षण के रास्ते में गरीबी सबसे बड़ी बाधा है। कहते हैं मानव संस्थाएं यानी मानव एजेंसियां जो जितनी भी बनाई गई है तो मानव अधिकारों के लिए ये बहुत ही ऊपर खड़ी हुई है। एनजीओ जो है बहुत रूप से जो है भारत में जो है सक्रिय भूमिका अदा कर रही है, लेकिन मानवाधिकार के लिए सबसे अधिक बड़ा जो रुकावट है वो गरीबी है। कहते हैं भारत में गरीबी प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है और इससे जो है मानवाधिकार के लिए जो है बहुत ही खनन का रास्ता उत्पन्न कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ आती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था मानवाधिकार। अगला चैप्टर जो अत्यंत महत्वपूर्ण है तो उसको देखना मत भूलना। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और दूसरी बात यह है कि पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना भी इंपॉर्टेंट रहता है, तभी आपको जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। आप सोचिएगा कि मैं जो है यूट्यूब पर सर्च करके जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के वीडियो देख सकता हूं, तो शायद आप गलतफहमी में हो, क्योंकि आप अगर सर्च करोगे तो
वो वीडियो आएंगे जो पहले यूट्यूब पे मौजूद है। अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर आपको अच्छा लगता है, अगर आप देखना चाहते हो तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना ही आपके भलाई में रहेगा। इससे ये होगा कि कोई भी अगर वीडियो आप देखना चाहोगे तो आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारे वीडियो का ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, जिसमें आप जो भी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखिएगा, समझिएगा और अच्छे अंक भी प्राप्त कीजिएगा।